This is about the electrolyte. So how many types of electrolytes we have? Two types. These two types of electrolyte: strong electrolyte and weak electrolyte. So now what do you mean by this strong electrolyte? The electrolyte ionizing completely are called as which electrolyte? Strong electrolyte. ठीक है? ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो completely ionize हो जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? Strong electrolyte. ठीक है? और जो the electrolyte which dissociate to smaller extent are called weak electrolyte. जिनका बहुत कम dissociation होता है, उनको हम कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल्स हम ध्यान में रखेंगे. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल्स है स्ट्रॉन्ग एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड में हमारे पास एसिड है HCl, H2SO4 एंड HNO3. और भी बहुत सारे एग्जांपल हम आगे देखने वाले हैं, बट एटलीस्ट यू हैव टू कीप इन योर माइंड दिस थ्री भी छोड़ो, ये दो तो 100%. मतलब ऐसे देखे बराबर कंफ्यूजन नाम की चीज भी दिमाग में नहीं आना चाहिए, इसलिए हम ज्यादा नहीं देखेंगे, लेकिन दो तो भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं. कौन से? HCl एंड H2SO4. SO4 कहां से आया? स्ट्रॉन्ग एसिड. Cl कहां से आया? स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक है, H तो सब में से आएगा. ठीक है, वंस मोर. दूसरा है स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग बेस में एक या दो ध्यान में रखेंगे, NaOH and KOH. NaOH and KOH. These are the what? Strong base. And लगभग all salt, जितने भी salt होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl, KCl, NH4, NO3, all. ठीक है, बहुत सारे salts हैं. तो all salts are which electrolyte? Strong electrolyte. Weak electrolytes are those which dissociate to very small extent. जो बहुत कम डिसोसिएट होते हैं, 100 में से 3-4 डिसोसिएट हुए, 5 डिसोसिएट हुए, उनको ही कहेंगे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट? वीक इलेक्ट्रोलाइट. इसके एग्जांपल्स रहेंगे वीक एसिड, वीक बेस. ठीक है, कौन कौन रहेंगे इसके एग्जांपल? वीक एसिड एंड वीक बेस. अब वीक एसिड में हमारे पास है फेमस वीक एसिड, दैट इज द वीक एसिड, एसिडिक एसिड. कीप इन योर माइंड, एसिडिक एसिड. वीक एसिड में ये सारे एग्जांपल्स आपके ध्यान में रखने हैं. ठीक है, वीक एसिड में फेमस वीक एसिड हमारे पास है, दैट इज वीक एसिड, एसिडिक एसिड. तो एसिडिक एसिड इज अ वीक एसिड. और वीक बेस में आपके पास बेस है NH4OH. दैट NH4OH इज कॉल्ड अमोनियम हाइड्रोक्साइड. अमोनियम हाइड्रोक्साइड ध्यान में रखेंगे, दैट अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज द व्हिच बेस? वीक बेस. ठीक है, नाउ so just before we have seen the some examples, strong acid and weak acid. तो strong acid में मैंने 3 एग्जांपल आपको बताए थे, तो ध्यान में रखेंगे ये तीनों भी एग्जांपल्स of the strong acid and weak acid. So what we have first is the one HCl. HCl is the one hydrochloric acid. HNO3 nitric acid. H2SO4 sulfuric acid. These three are the examples of which acid? Strong acid. Just before we have seen. Now next, weak acid के examples में हमने acidic acid सिर्फ एक example लिखा है. These are the some more examples of weak acid. You can write this example. This is H3PO4. It is called the phosphoric acid. H3PO4 is a phosphoric acid. Next is the H2CO3. That is called carbonic acid. And that H2CO3 is unstable. And so it decomposes to form H2O plus CO2. इसलिए उसको CO2 से रिप्रेजेंट किया है. CO2 aqueous. Aqueous मतलब कौन? वाटर. Aqueous मतलब कौन? वाटर. तो H2O plus CO2. When CO2 gas is passed into the water, that will produce the H2CO3. And that H2CO3 is nothing but what? Aqueous CO2. समझ गए? तो this is what. And last one example is acidic acid. So these two more examples you have to keep in your mind for acidic acid. You have to write these examples. ठीक है? So what acid? Now we will see the examples of what weak bases. Weak bases अच्छे से ध्यान में रखना है. एक ही weak base हमने देखा है, कौन सा? NH4OH. ठीक है, तो weak base less than 100% ionize in water. No doubt less than 100%, लेकिन बहुत कम ionize होता है. ठीक है, तो हम देखेंगे उसको. One of the best weak base is what? Ammonium hydroxide. ये NH4OH ध्यान में रखना. What is that ammonium hydroxide? अमोनिया का स्ट्रक्चर आपको पता है. This is nitrogen and these are the hydrogen and this is its
lone pair, and it forms the which geometry? Pyramidal geometry. कौन सी geometry? Pyramidal geometry. It forms this pyramidal geometry and its hybridized state is sp3. क्या है hybridized state? sp3. ठीक है? तो this is nitrogen and this is water. This combined to form the NH4OH. Water का dissociation होगा, H positive attack on the lone pair of nitrogen, and NH3 is converted into NH4 positive and combined with OH negative to form NH4OH. We already seen about this base, that is the which hydroxide? Ammonium hydroxide. तो weak base का एग्जांपल ध्यान में रखेंगे, कौन सा हाइड्रोक्साइड? अमोनियम हाइड्रोक्साइड. क्लियर है सब लोग? तो this is about the weak base. Now after studying these weak bases, these are the some more example. अमोनिया, अभी हमने ये पढ़ा हुआ है अमाइंस. Have you studied amines? और अमाइंस में हमने देखा Kb and Pkb. Kb is directly proportional to the basicity. Have you discussed? Kb is directly proportional to the basicity. तो यहाँ पे इसके अंदर ये जो what अमोनिया होता है, तो अमोनिया की बेसिसिटी Kb होता है 1.8 into 10⁻⁻⁵. ठीक है? और ये जो कोको कोला वगैरह है, इसके अंदर होता है बेंजोइक आयंस. ठीक है? और वो एसिडिक होता है, और उसका जो K होता है बेंजोइक एसिड से बना है ना वो. अरे बेंजोइक एसिड से क्या बना है? वो बेंजोइट. हाँ, तो बेंजोइक आयन से ये बना है. एंड एज इट इज फॉर्म फ्रॉम बेंजोइक आयन, तो इसका जो K होता है, K एसिड के लिए होता है, तो K is directly proportional to the acidity. It is 1.6 into 10⁻⁶. उसके बाद फॉस्फोरिक एसिड, कौन सा एसिड? फॉस्फोरिक एसिड. तो फॉस्फोरिक एसिड से फॉस्फोरेट आयन बनता है, तो उसके K की भी वैल्यू होती है और Kb की भी वैल्यू होती है. तो ये जो फॉस्फेट, इसकी Kb की वैल्यू इतनी होती है. तो इस तरह से कुछ ये एग्जांपल्स है. कैफीन, कैफीन भी एक बेस होता है, उसकी भी Kb की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है. तो दीज आर द सम बेसिस दैट वी यूज इन अवर डे टू डे लाइफ. ठीक है? तो इसको हमें उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है. तो वीक बेसिस, दीज आर द सम मोर एग्जांपल्स ऑफ वीक बेसिस. वीक बेसिस अमोनिया हो गया, कैफीन हो गया, उसके बाद फॉस्फेट आयन की भी Kb की वैल्यू दी है, बट इट विल बी एसिडिक. ठीक है? तो डोंट वरी. तो दिस इज अबाउट द वीक बेसिस. स्ट्रॉन्ग बेसिस तो हमने पढ़े. वी हैव द टू मोर स्ट्रॉन्ग बेसिस. व्हाट? NaOH एंड KOH. NaOH एंड KOH. ठीक है? NaOH एंड KOH, दे आर 100% आयोनाइज्ड इन वाटर. उनको हम कहते हैं कौन से बेसिस? स्ट्रॉन्ग बेसिस. तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस. तो एसिड और बेसिस की कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे फॉर एग्जांपल एसिड पानी में डिसॉल्व होता है, बेस भी पानी में डिसॉल्व होता है. ठीक है? उसके बाद एसिड जो है पानी में डिसॉल्व होने की वजह से वो क्या करता है? आयंस प्रोड्यूस करता है, और आयंस प्रोड्यूस होने की वजह से इट एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोलाइट. बेस आल्सो एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोलाइट. इसकी सोर टेस्ट है और इसकी कैसी टेस्ट है? बीटा. दोनों भी न्यूट्रलाइट. एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करेगा, बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, और इसलिए एसिड न्यूट्रलाइज टू बेसेस एंड बेस न्यूट्रलाइज टू एसिड. ठीक है? तो एसिड है H पॉजिटिव देगा, और इसलिए एसिड रिएक्ट विद एक्टिव मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. वी हैव ऑलरेडी सीन द रिएक्शन. ठीक है? एसिड क्या करेगा? एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करेगा. जैसे हमने एक रिएक्शन देखी अल्कोहल. तो अल्कोहल के बीच का OH बॉन्ड टूटता है व्हेन इट्स ट्रीटेड विद द व्हिच मेटल? सोडियम मेटल, एंड इट फॉर्म्स RONA प्लस देयर इज रिलीज ऑफ व्हिच गैस? H2 गैस. दिस रिएक्शन इंडिकेट्स द एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल. ठीक है? तो इस तरह अगर हम इसके अलावा भी कोई एसिड ले लेते, वो भी H पॉजिटिव देता, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है, H पॉजिटिव एक्सेप्ट करके H2 गैस बनता है, और इस तरह. तो इसलिए हम कहेंगे कि व्हाट एसिड रिएक्ट्स विद एक्टिव मेटल टू प्रोड्यूस द व्हिच गैस? हाइड्रोजन गैस. यहाँ पे pH वाला कॉन्सेप्ट हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक बात तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई है. माइनस लॉग मतलब क्या होता है? P. माइनस लॉग मतलब P, और माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव मतलब क्या हो गया? pH. तो एसिड का pH 7 से कम होता है. एसिड का pH 7 से कम होता है, और बेस का pH 7 से ज्यादा होता है. ठीक है? तो ये रिएक्ट विद मेटल टू रिलीज द हाइड्रोजन गैस. इमल्सिफाइड फैट्स एंड ऑयल, मतलब ऑयल्स और फैट्स के साथ अगर इसको मिक्स करें तो वो एक सॉल्यूशन बनाता है, और उस सॉल्यूशन को कहते हैं इमल्शन. क्या कहते हैं? इमल्शन. तो ये इमल्शन बनाने के लिए काम में आता है.
इसका जो पीएच रहेगा वो 7 से ज्यादा, और वो ब्लू लिटमस का कन्वर्शन क्या में करेगा, रेड, और ये रेड लिटमस का कन्वर्शन ब्लू में करेगा। ठीक है, ये इनके बीच का डिफरेंस है। सो दीज आर द सम डिफरेंसेस वी हैव सीन इन बिटवीन द एसिड एंड बेस। सम नॉर्मल डिफरेंसेस हैं, 5 to 7 पॉइंट्स यू कैन इजीली टेक। एसिड dissolved in water दोनों भी। बेस सॉरी एसिड में दूसरी बात क्या, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये भी इलेक्ट्रोलाइट करके एक्ट हो सकता है, वो भी इलेक्ट्रोलाइट करके एक्ट हो सकता है। तीसरा, एसिड की टेस्ट कैसी टेस्ट है, सोर टेस्ट, और उसकी टेस्ट कैसी है, बीटर टेस्ट। ठीक है, कितने हो गए, 3। फोर्थ, एसिड रिएक्ट्स विद एक्टिव मेटल टू प्रोड्यूस द व्हिच गैस, हाइड्रोजन गैस, but it does not really react with active metal to produce hydrogen gas. Acid का pH क्या रहेगा, less than 7, base का pH more than 7। ठीक है, acid converts blue litmus into red, this convert red litmus into blue, acid neutralized to base and base neutralized to acid। Okay, so these are the differences you can easily keep in your mind related to the acid and base। Clear है सब लोग? Now